امریکہ میں تھینکس گیونگ کا تہوار کیوں اور کیسے منایا جاتا ہے، جانیں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ میں تھینکس گیونگ یعنی یوم تشکر ہر سال نومبر کی چوتھی جمعرات کو منایا جاتا ہے، اور اس میں روایتی طور پر فیملیز اور دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں، خاص دعوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسے امریکہ میں چھٹیوں کی شروعات یا تعطیلات کے موسم کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ تھینکس گیونگ کا اگلا دن یعنی آج کا دن بلیک فرائیڈے کہا جاتا ہے، اور نومبر سے شروع ہونے والا شاپنگ کا یہ سلسلہ اور یہ سیزن تقریباً 5 ہفتے یعنی نئے سال جنوری کے نیو ایئر کی تقریبات کے بعد ختم ہوتا ہے۔ آج کے خصوصی شو میں ہم آپ کو تھینکس گیونگ کے تہوار کے بارے میں بتائیں گے اور کچھ مزید رپورٹس شامل کریں گے۔ اور سب سے پہلے امریکہ میں تھینکس گیونگ پر سرکاری چھٹی ہوتی ہے، اور اس تہوار کو بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس دن کے ڈنر میں ٹرکی خاص طور پہ اہتمام سے پکائی جاتی ہے۔ آئیے اس تہوار کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نومبر 1621 میں یورپ سے آ کر امریکہ میں آباد ہونے والے تارکین وطن نے اچھی فصل کی خوشی میں جشن منایا۔ اس تقریب میں کھیتی باڑی سکھانے والے آبائی امریکی باشندوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ یوں تھینکس گیونگ منانے کا آغاز ہوا۔ شروع میں مختلف امریکی ریاستیں مختلف دنوں میں یہ تہوار مناتی تھیں، لیکن 1863 میں اس وقت کے امریکی صدر ابراہم لنکن نے اسے قومی چھٹی قرار دیا۔ امریکی تہواروں میں تھینکس گیونگ کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس میں خاندان اور عزیز و اقارب مل بیٹھ کر کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، خاص طور پر اس تہوار کی خاص ڈش ٹرکی سے۔ کھانے پینے کے علاوہ خصوصی پریڈز اور ٹی وی شوز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ افراد اس دن کو رضاکارانہ سرگرمیوں میں گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ہیپی تھینکس گیونگ۔ امریکہ میں مقامی امریکی قبائل صرف چند ریاستوں میں ہی رہ گئے ہیں، اور وہ بھی معاشی اعتبار سے بہت پیچھے ہیں۔ تاریخ دانوں کی کوشش ہے کہ تھینکس گیونگ کے موقع پر یورپی نسل سے تعلق رکھنے والے امریکی خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ اگر مقامی قبائل ان کے آباء و اجداد کی مدد نہیں کرتے تو وہ امریکہ میں قدم نہیں جما سکتے تھے۔ تقریباً 400 سال پہلے یورپی تارکین وطن نے اس زمین پر قدم رکھا جسے آج یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہا جاتا ہے۔ مے فلاور نامی بحری جہاز کے مسافروں کو یہاں پہنچ کر پتا چلا کہ اس سرزمین پر تو پہلے سے لوگ رہتے ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق وامپانوک قبیلے کے لوگ اس براعظم پر ہزاروں سال سے رہ رہے تھے، اور امریکہ کی ابتدائی تاریخ میں ان کا اہم کردار ہے۔ یہ غلط فہمی کہ یہاں کے مقامی قبائل امریکی معاشرے کا حصہ نہیں، اسے دور کرنا آج بہت ضروری ہے۔ رنے گوکی واشنگٹن ڈی سی میں قائم نیشنل میوزیم آف امریکن انڈین میں ایجوکیشن کوارڈینیٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وامپانوک قبیلے نے ایک جامع زرعی اور سیاسی نظام پہلے سے قائم کر رکھا تھا۔ مقامی قبائل نے عوامی نمائندوں پر مشتمل حکومت قائم کر رکھی تھی۔ یورپی آبادکاروں نے یہ نظام ان سے سیکھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق امریکی سرزمین پر آمد کا پہلا سال یورپی آبادکاروں کے لیے بہت مشکل تھا۔ انہیں موسم اور زمین کی ساخت کا اندازہ نہیں تھا، اور جب وہ پہنچے تو فصلیں بونے کا موسم بھی گزر چکا تھا۔ بہت سے لوگ سردی اور بھوک کے باعث ہلاک ہو گئے۔ وامپانوک قبیلے نے ان کے ساتھ امن معاہدہ طے کیا اور انہیں زراعت، دفاع اور ہتھیاروں میں مدد دی۔ وامپانوک قبیلے نے اس وقت کے انگریز گورنر کا ساتھ دیا، اور جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کا دفاع کرنے کا معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے کے 1 سال بعد آبادکاروں اور تارکین وطن نے اپنی پہلی فصل کی کٹائی پر خوشی منائی۔ وامپانوک قبیلے نے بھی اس میں حصہ لیا اور اپنے روایتی کھانے لے کر آئے۔ تو 3 بہنیں نام کا ایک طریقہ ہے جس سے مراد مکئی، لوبیا اور توری ہیں۔ پہلے مکئی کاشت کی جاتی ہے، پھر لوبیا۔ چونکہ لوبیا میں نائٹروجن زیادہ ہوتی ہے تو یہ ایک طرح سے کھاد کا کام بھی کرتا ہے۔ مکئی کا پودا بڑھتا ہے اور لوبیا اس کے گرد چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر توری کے بیج بو دیے جاتے ہیں۔ 3 بہنوں کا طریقہ کئی مقامی قبائل میں کاشتکاری کا بنیادی طریقہ رہا ہے۔
फ्रेडी बटरी नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन इंडियन में शेफ हैं। आज की अमेरिकी खुराक में मकामी कबाइल के अहम किरदार के बारे में नई नस्ल को सिखाने के लिए उन्होंने एक खास सलाद तैयार की है। इससे साल के इस हिस्से के बारे में बहुत सी अहम बातों का पता चलता है। सबसे अहम तो जिंदा रहने की कोशिश ही है। मेरे ख्याल में तीनों बहनों का तरीका यही जाहिर करता है। यूरोपीय आबादकारों और अमेरिकी कबाइल के दरमियान उस पहली दावत के 250 साल बाद सदर अब्राहम लिंकन ने थैंक्सगिविंग को सालाना छुट्टी बनाने का ऐलान किया ताकि अमेरिकी खाना जंगी के जख्म भरने में कुछ मदद मिले। क्रिस्टीना काइसेडो स्मिथ के साथ सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस मरतबा क्रिसमस से पहले के चंद हफ्तों में, जिसे अमेरिका में हॉलीडे सीज़न कहा जाता है, अगर आप न्यूयॉर्क शहर के एक म्यूज़ियम में जाएं तो एक मखसूस खुशबू आपका इस्तकबाल करेगी और आप न्यूयॉर्क शहर के मशहूर मकामात के मॉडल्स देखेंगे जिन्हें जिंजर ब्रेड से बनाया जाता है। ये मॉडल एक मुकाबले का हिस्सा भी हैं जिसे द ग्रेट बोरो ब्रेक ऑफ का नाम दिया जाता है। इस मुकाबले में शहर की कुछ यादगारों को खूबसूरत और अनोखे अंदाज से डिज़ाइन करने पर इनामात दिए जाते हैं। इस मरतबा क्रिसमस से पहले के अरसे में, जिसे यहाँ अमेरिका में हॉलीडे सीज़न कहा जाता है, आप न्यूयॉर्क शहर के अजायब घर में दाखिल हों तो एक मखसूस खुशबू आपका इस्तकबाल करेगी और आप न्यूयॉर्क शहर के मशहूर मकामात के मॉडल देखेंगे जो जिंजर ब्रेड से बनाए गए हैं। ये मॉडल एक मुकाबले का हिस्सा भी हैं जिसे द ग्रेट बोरो बेक ऑफ यानी बेकरी से बनाए न्यूयॉर्क के इलाके का नाम दिया गया है। इस मुकाबले में इन मॉडल्स के बनाने और नमूने में कामयाबी से ढालने पर इनाम दिया जाएगा। मैं अंदर दाखिल हुआ तो जिंजर ब्रेड की खुशबू आई जो बहुत अच्छी लगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। वाव, जबरदस्त खुशबू। बेक करने के इस मुकाबले के कवायद के मुताबिक हर डिज़ाइन मुकम्मल तौर पर ऐसा होना ज़रूरी है कि लोग इसे खा सकें और इसे शक्ल देने में कम से कम 80% जिंजर ब्रेड इस्तेमाल की गई हो। हमारे यहाँ न्यूयॉर्क शहर के मशहूर मकामात के मॉडल हैं जो लोग फौरन पहचान लेंगे। इनमें लोअर मैनहट्टन में फ्रीडम टावर और ओक्रस नामी यादगार है जो आंख से मुशाबा है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है जिसके अतराफ से किंग कॉन्ग और स्पाइडरमैन ऊपर चढ़ते नजर आते हैं। इनमें सबसे बेहतर का मुकाबला कोनी आइलैंड के वेंडर व्हील ने जीता। दीगर नुमाया मॉडल्स में जिंजर ब्रेड से बना ब्रॉन्क्स की चिड़ियाघर का एक हैरान कुन मॉडल है जिसमें आइसिंग से जानवरों के मुजस्समे बनाए गए हैं और फिर क्वींस के फॉरेस्ट हिल स्टेशन का पेचीदा मॉडल भी है, लेकिन तमाम नमूनों में सिर्फ उन्हें शक्ल देने पर तवज्जो नहीं दी गई है। जिंजर ब्रेड बनाने वाली ज्यूल जॉनसन न्यूयॉर्क के सबसे मकबूल खाने यानी पिज़्ज़ा से मुतासिर हुई हैं। I used red royal icing. मैंने शाही सुर्ख रंग की आइसिंग से सॉस बनाई और सफेद क्रीम से पनीर बनाया। बारीक पनीर्स को मोज़रेला की तरह इस्तेमाल किया, फिर शोले से इसे पिघलाया और इसे ब्राउन रंग दिया और ये ढीला सा उभरा सा बन गया। And melt it and make it all brown and gooey bubbly looking. अजायब घर में आने वालों का कहना है कि जिंजर ब्रेड से बनाए ये मॉडल उन्हें त्योहार और छुट्टियों के दिनों का एहसास दिला रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत शानदार है, खास तौर पर साल के इन दिनों में, क्योंकि ये मुझे छुट्टियों का एहसास देता है और बेक करने वालों की तरफ से ऐसे हैरान कुन फनपारे बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। ये नुमाइश 12 जनवरी तक जारी रहेगी और लोगों को न्यूयॉर्क के जादुई तजुर्बे का मौका फराहम करती रहेगी। एरन रेनन की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिरा मंजिल, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। और अब थैंक्सगिविंग से हट के शो में कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स शामिल करते हैं। सबसे पहले चलते हैं एक ऐसी बस्ती में जहां तिनका तिनका जोड़कर घर बनाए जाते हैं। गुजरांवाला में कादराबाद बैराज के गिर्द सिंधी मुहाजिरों और मुकामी माहीगीरों की ऐसी बस्तियां हैं जो घास और मिट्टी से बने घरों का मंजर पेश करती हैं। ये घर बनते कैसे हैं और ये खुश्क घास मजीद किस काम आती है, जानते हैं समन खान से। सूबे पंजाब में कादराबाद बैराज से मुंसलिक इस तालाब पर सूरज की रोशनी फैल चुकी है। साहब खान और इस जैसे बहुत से माहीगीर पानी में उतर रहे हैं। किसी का मकसद मछली पकड़ना है तो कोई इस तालाब में उगी कुदरती घास काटने की गर्ज से यहाँ आया है।
इन कुदरती तालाबों के करीब बसने वालों का ये रोजाना का मामूल है। कहीं पानी ज्यादा होता है, कहीं कम, 5 फीट, 6 फीट, 10 फीट, कहीं दलदल होती है, लेकिन हमें उसके अंदर उतरना पड़ता है। कीड़े मकोड़े भी होते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होती है। हमारा रोजगार यही है, इसी को जलाते हैं, इसी से घर बनाते हैं, इसी को बेचते हैं। साहब खान ने तो अपने काम का तारुफ करवा दिया, लेकिन आपको दिखाते हैं कि मुकामी जुबान में डिब या किंदर कहलाई जाने वाली दरियाई घास को माही गिरों की ये बरादरी कैसे कारआमद बना रही है। हेड कादराबाद की हदूद के आगाज़ो इख्तिताम पर सिंधी मुहाजिरों और मुकामी माहीगीरों की बस्तियां इसी डिब और मट्टी से बने कदरे कच्चे लेकिन मुनफरिद आशियानों का मंजर पेश करती हैं। इन बस्तियों में दाखिल हों तो कहीं ये डिब खुश्क होने के लिए बिछाई गई है, तो कहीं इसे इस्तेमाल में लाते हुए पहले से बने घरों की बहाली और मुरम्मत की जा रही है। इन्हीं में से एक सिंधी बस्ती के दोस्त मोहम्मद सर्दियों की आमद से पहले अपने बरामदे के गिर्द डिब की दीवार बांध रहे हैं ताकि ठंडे मौसम का मुकाबला कर सकें। सर्दियों के लिए कुछ गुजारेमंद होता है, गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट होता है, इसकी छां ठंडी होती है। बारिश में इनके 2 पर्दे होते हैं, ऊपर से एक सेंटर में शापर डाल देते हैं, ये 2 छपरे होते हैं जिनके सेंटर में शापर होता है और नीचे बारिश नहीं आती। ख्वातीन डिब को घरों में चूल्हा जलाने के लिए बतौर ईंधन भी इस्तेमाल करती हैं। मौसम गर्मा में जब माहीगिरी का काम खत्म होता है तो यही माहीगीर और इनके खानदान इसी डिब से नमाज की सफ़ें, चटाइयाँ, टोकरियाँ और इस्तेमाल की दीगर अशिया तैयार करके मार्केट में फरोख्त करते हैं। 12 महीने बनाने हमारा ये 12 महीने का काम है। हम ये डब स्टॉक करते हैं, 200 रुपए की भी है, 500 की भी और 800 रुपए की भी है। अगर कोई खरीदार आ जाए तो उसे फरोख्त कर देते हैं और अगर ना आए तो फिर हम शहरों में खुद जाकर बेच आते हैं। दे देने जे ना हो तो फिर असि आप शहर च जाने हैं। अपनी मदद आपके तहत जिंदगी गुजारते इन बस्तियों के बासियों का शिकवा है कि इन्हें बिजली, पानी, सेहत जैसी बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं। बच्चों के पैदाइशी सर्टिफिकेट और ख्वातीन के शनाख्ती कार्ड का हसूल भी आसान नहीं, लेकिन हाल ही में गैर सरकारी तंजीम की वजह से तालीम इनके दरवाजों तक पहुंची है। हमारा फोकस इस चीज़ पे है तो ये दीन के बारे में थोड़ा सा सीख जाएं। हम इधर कुरानी तालीम इन्हें देते हैं और दूसरा ये है कि इन्हें खुद का पता हो, इन्हें सफाई का पता हो, हमने किस तरह से रहना है, ये खुद को सवार के साफ सुथरा रख सके और माशरे में चल सके। ये ना हो कि कहीं भी जाएं लोग इनसे पीछे पीछे होते हैं कि ये तो साफ ही नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त है कि बुनियादी सहूलतें तो कम से कम हमें दें। अरसा दराज से यहाँ बैठे हैं, कोई बिजली गैस का निजाम नहीं, शनाख्ती कार्ड बनाने में मसाइल आते हैं। करीबी हेड कादराबाद है, वहाँ बिजली बनाने का सारा निजाम है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं। कोई गल नहीं, मच्छर लड़ाते रहने हैं। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। पक्के और अपने घरों का ख्वाब तो दूर से दिलफरेब दिखाई देने वाले इन आशियानों में बसने वाले अफराद भी देखते हैं। साल बाद नए सिरे से घर बनाना एक मुश्किल काम जरूर है, लेकिन अपने आबाओ इजदाद से सकाफत के नाम पर सर छुपाने की जगह बनाने का हुनर सीखने वाले इन अफराद में शऊर और आगाही जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे ही इन बस्तियों में इन्हें बुनियादी सहूलतों की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, कादराबाद। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में, सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। भारत के ज़ेर-ए-इंतज़ाम कश्मीर में मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं और मुख्तलिफ परिंदों से दुनिया को मुतारिफ़ कराने का काम कर रहे हैं कश्मीरी नौजवान इरफान जिलानी। इरफान ने बर्ड्स ऑफ कश्मीर नामी एक ग्रुप की बुनियाद रखी है। ये ग्रुप वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में घूम कर यहाँ के परिंदों को शनाख्त करता है। इस ग्रुप की एक बर्ड वॉचिंग वॉक पर हमें ले जा रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़ुबैर डार। तरह तरह के परिंदों को देखने की उम्मीद में जंगल में सफर करते ये लोग भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बर्ड वॉक कर रहे हैं। इनकी तलाश का मकसद इलाके में सयाहत बढ़ाने के लिए बर्डिंग को फरोग देना है। देखिए, अब टूरिज्म दिन ब दिन चेंज हो रहा है। अब टूरिज्म खाली लेजर नहीं है कि नदी के पास बैठे और वहीं रहेगा।
जो नया टूरिज्म आ रहा है, दे वांट एक्सपीरियंस, दे वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, कि बर्ड वॉचिंग है, ट्रैकिंग है, विलेज है, उनका कल्चर देखना चाहते हैं। एंड आई थिंक ये जो हमने स्टार्ट किया, प्रमोटेड वेल, ये बहुत बेनिफिट करेगा यहाँ के लोकल्स को, जो यहाँ के गाइड्स हैं, हमारे होटलियर्स को, और जो भी यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है। बर्डिंग या बर्ड वॉचिंग मुख्तलिफ अक़साम के परिंदों को इनके कुदरती माहौल में देखने और इनकी शिनाख्त के अमल का नाम है। ये कोई बाकायदा पेशा नहीं, बल्कि दुनिया भर में लोग इसे शौकिया करते हैं। कश्मीर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें कि आपको यहाँ वेटलैंड्स भी मिलते हैं, आपको यहाँ ग्रासलैंड्स भी मिलते हैं, आपको यहाँ माउंटेन फॉरेस्ट भी मिलता है, अल्पाइन एरियाज़ भी है, तो इतने डाइवर्स हैबिटेट्स है। ऑब्वियसली इट अट्रैक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर बर्ड डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने पिछले 1-1.5 साल में अराउंड 127 स्पीसीज़ पहलगाम में रिकॉर्ड की हैं। आजकल बर्ड टूरिज़्म बहुत फैल रहा है। उत्तराखंड में देखिए, हिमाचल में देखिए, लद्दाख में देखिए, काफ़ी ग्रुप्स आते हैं टू सी बर्ड्स। My interest in birding comes from my father, who's a very efficient birder. Kashmir, especially Pahalgam, has a variety of birds. तो काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट को हम ल्यूर इन कर सकते हैं, एंड दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग। आई हैव मेट बर्डर्स जो आपके साउथ से आएंगे जस्ट टू फाइंड वन स्पीशीज़ इन कश्मीर। सो व्हाई नॉट अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट? इट कैन बी अ very good source of employment for a lot of people. जहां ये ग्रुप गैर मुल्की सयाहों को कश्मीर के परिंदों की जानिब मुतवज्जा करके इनके यहां आने की उम्मीद कर रहा है, अमरीकी महकमा खारजा ने 5 अक्टूबर को जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी में अपने शहरियों को जम्मू कश्मीर के हर तरह के सफर से बाज रहने के लिए कहा है। इसकी वजह इलाके में दहशतगर्दी के हमले और बदअमनी की फिजा बताई गई है। जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, पहलगाम, कश्मीर। दुनिया के कई हिस्सों में इमारतों की छतों पर सोलर पैनल्स या शमसी तवानाई के पैनल्स अब आम सी बात है, लेकिन ये पैनल्स झीलों, तालाबों और समंदर की सतह पर भी लगाए जा सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में जायजा लिया गया है कि एशिया और यूरोप में पानी की सतह के लिए मुतारिफ कराए जाने के बाद अब ये टेक्नोलॉजी शुमाली अमेरिका में भी मकबूल हो रही है। आलूदगी से पाक बिजली पैदा करने के लिए सबसे मकबूल इजादात में से एक पानी की सतह पर तैरते फोटोवोल्टेक्स या PFV हैं। ये शमसी तवानाई के पैनल्स हैं जिन्हें झीलों, तालाबों और दीगर आबी ज़खायर और समंदरों में लगाया जाता है। तैरते हुए शमसी तवानाई के पैनल्स की अफादियत उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब वो पन बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स से मुल्हिक पानी के ज़खायर पर बिछाए जा सकें, जिनमें पहले से ट्रांसमिशन लाइन्स मौजूद होती हैं। कोलोराडो में काबिल तजदीद तवानाई की नेशनल लेबॉरेटरी की एक मुहक्किक सीका गंजाको का कहना है, In countries that depend again on a lot of hydropower, लिहाजा पानी से पैदा होने वाली बिजली पर इतना ज़्यादा इन्हसार करने के बजाय अब आप इन तैरते हुए शमसी पैनल्स का इस्तेमाल ज़्यादा और आबी वसाइल पर अपना भरोसा कम कर सकते हैं। ख़ास तौर पर बहुत खुश्क मौसम में आप अपने तैरते हुए सोलर पैनल से इस्तेफादा कर सकते हैं। काउंसिल की रुकन डेब्रा फज का कहना है कि 5000 सोलर पैनल्स अब कैलिफोर्निया के कस्बे विंडसर के गंदे पानी के तालाबों में से एक पर तैर रहे हैं। तो हमें 90% ऐसी तवानाई भी फराहम करते हैं जो आलूदा पानी को साफ करने, पानी की सफाई के काम को अंजाम देने वाली जगह के तमाम अमल और आलूदा पानी को 40 मील शुमाल में उस मकाम तक पहुंचाने के लिए दरकार होती है जहां इस पानी को तल्फ किया जाता है। वर्जीनिया की ये झील अमेरिका में तकरीबन 25,000 पानी के उन ज़खायर में से एक है जिन्हें हुकूमत ने शमसी तवानाई के तैरते हुए पैनल्स के इस्तेमाल के लिए मौजू करार दिया है। इनमें से पानी के हर एक ज़ख़ीरे के 1/4 रकबे को इस्तेमाल करने वाले तैरते हुए पैनल्स इम्कान है कि अमेरिका की तवानाई की तकरीबन 10% ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे। स्टीव हरमन के साथ फ़ाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द
बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं औरतें बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, सिद्राडार, मुर्तज़ा ज़हरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन अपने मुख्तलिफ म्यूजियम्स या अजायब घरों की वजह से भी सयाहों में एक पहचान रखता है। शहर में अब हाल ही में एक नया म्यूजियम प्लैनेट वर्ल्ड बना है। आइए आपको इस म्यूजियम की सैर करवाते हैं। Hello. Hello and welcome to Planet Word. Yo, hi there. You're standing in front of about 1,000 words. I'm Ann Friedman. I'm the founder and CEO of Planet Word. मैं एन फ्रीडमैन हूँ। मैं वाशिंगटन डीसी में अल्फाज और ज़ुबान के एक नए म्यूज़ियम प्लैनेट वर्ल्ड की बानी और सीईओ हूँ। छोटी उम्र से ही पढ़ने के शौक़, अल्फाज और गैर मुल्की ज़ुबानों में हकीकी दिलचस्पी के साथ बड़ी हुई, और इसलिए मैंने अल्फाज और ज़ुबान के म्यूज़ियम की तख्लीक का सोचा। Investigating the idea of creating a museum of words and language. फ्रैंकलिन स्कूल एक तारीखी कौमी यादगार है जहाँ प्लैनेट वर्ल्ड की हैसियत से जगह हासिल करने के काबिल होना बड़ी बात है। हम खुद को दुनिया का पहला आवाज़ से चलने वाला म्यूजियम कहलाना पसंद करते हैं, इसलिए हमारे पास आवाज़ों को शनाख्त करने वाली बहुत सी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे पास हरकत करने वाले अवामिल भी हैं। We have places throughout the museum where हमारे पास पूरे म्यूजियम में ऐसे मकामात हैं जहां सिर्फ कुर्सी को हरकत देने से नुमाइश शुरू हो जाती है, या किसी खुसूसी होल्डर में किताब रखते ही प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी हरकत में आ जाती है। so holder you will trigger projection technology. I speak Iceland. मैं आइसलैंड की जुबान बोलती हूँ, मैं अम्हारी, हिंदी, कोरियन, हवाई, फारसी बोलती हूँ, और मैं इब्रानी बोलती हूँ। हमारे पास ये पेंट ब्रश हैं, और आप इन हाईटेक पेंट ब्रशेस में से किसी एक को वर्ड पैलेट में डुबोकर अपने गिर्द दीवार पर लफ्ज़ के साथ मनाजिर को पेंट कर सकते हैं। And paint the scenery around you on the walls with that word. जब मैं इस लफ्ज़ में अपने ब्रश को डुबोती हूँ तो क्या होता है आप जानते हैं? मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं शर्त लगाकर कहती हूँ कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप इस लफ्ज़ को कभी नहीं भूल पाएंगे, वो आपकी ज़मीर में पैवस्त हो जाता है। I was a reading and writing teacher and I think I was pretty successful at that, but like I said, मैं पढ़ाने और लिखाने वाली टीचर थी और मुझे लगता है कि मैं इसमें काफ़ी कामयाब भी थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ज़ुबान के फ़न में नताइज बरसों से जमूद का शिकार हो रहे हैं। हम इन मनफी रुझानात को कैसे पलट सकते हैं? और ये ख्याल मुझे गैर रस्मी तालीम के ज़रिए आया। यही कुछ अजायब घरों में होता है, सीखना आपके लिए शौक बन जाता है। That's what happens at museums. You make learning fun, so I felt like लिहाजा मैं महसूस करती हूँ कि एक म्यूजियम के होने से मुझे जगह मिली, मुझे असर रसूख मिला, और फिर मुझे कौमी तवज्जो हासिल हुई, जो हो सकता है पढ़ने, जुबान और अल्फाज को दोबारा से लोगों में पसंदीदा बना दे। cool again. इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान, दुनिया और खत्ते भर की खबरें जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और एक्स इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।